to your own YouTube channel, Atri Academy. Today in this video, we will study about metals and non-metals. In this session of the video, we will study about the physical properties of metals and non-metals. Now, the seventh property, sonorous. Metals are sonorous and non-metals are non-sonorous. Non-sonorous. Sonorous means all the metals produce sound. All the metals produce sound when beaten or hammered. When beaten or hammered. Okay. The non-metals are non-sonorous. हिंदी में इसको बोलते हैं अध्वनिक और इसको बोलते हैं ध्वनिक। क्या बोलते हैं इसको? ध्वनिक। अब सुनिए, क्या है डिफरेंस? जब हम इनको पीटते हैं तो धातुओं में से एक कंपन से उत्पन्न आवाज है। ध्वनि तो पैदा ही कंपन से होती है। द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन because all the metals in them have free electrons. When beaten, these free electrons they vibrate, so they continuously produce sound, and non-metal do not. अब आप ये कहेंगे इस तरह एक पत्थर लिया और दूसरे पत्थर के साथ उसको हमने टकराया तो आवाज तो हुई ना। Definitely the thing is right. There is a sound, but this sound cannot be said sonorous. Sonorous means, what is the meaning of sonorous? The sound which is produced by the vibration of the particles of a substance and it keep continue. ठीक है, it fades with time. But the sound by the collision, it is for a while. It does not persist for a long time. The particles of the substance, if it is not a metal, will not vibrate, continue to vibrate, so to produce sound. And if it is a metal and the two metals they are beaten together, take example, it's a very small activity you can perform at home. Take two pieces, one made of you take a brass plate or a steel plate at your home, and with the spoon you hit it, and then you take another plastic tube, plastic plate. Plastic, it represents non-metal, and the steel or the brass plate, it represents your metal, because the brass is an alloy of copper and zinc. So when you beat with the spoon, then it will produce a sound, and this sound is all because of the vibration of its particles, the electrons in their kernels, because the metals they have electron and kernels. It is a matter of higher studies, but you can sense if the sound is continuously persisting and it fades with the time. This vibration continue, and you can sense it by putting your ear near to that plate. But when you beat a plastic plate with a spoon, there will be a sound, but this sound is not a sonorous sound. It is a sound which is produced by the collision. That plastic plate will not produce the vibrations and will not have that. तो जो साउंड की ध्वनि जो है, आप मंदिर की घंटी देखते हैं, मंदिर की घंटी को बजा के देखिए आप, ठीक है। ऐसा ही आप क्या कर लीजिए, आप कोई नॉन मेटल की चीज लीजिए, उसको लगाइए, तो दोनों में जो परसिस्टेंस ऑफ वाइब्रेशंस है, ठीक है, यही बताता है कि वे whether these are sonorous or non-sonorous. So metals are sonorous. This is why all the musical instruments, these all are made up of metals. आपने देखा ना, जो गिटार है, गिटार की जो वायर है, वो आप प्लास्टिक की क्यों नहीं बनाते? वो किससे बनाई जाएगी? बेस्ट क्वालिटी स्टील और बेस्ट क्वालिटी अदर मेटल. So this is it. और जो ड्रम्स पे आता है ना आपका, जो when you take drums, उसके ऊपर जो प्लेट्स लगी होती है, वो किसकी होती है? स्टील की. So this is why the metals they are sonorous and the non-metals they are not sonorous. Sonorous का मीन्स क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन किया है.
आवाज तो दोनों पैदा करते हैं, लेकिन ध्वनिक यानी कंपन से परसिस्ट करने वाली ध्वनि इसमें होती है धातुओं में। जो घंटे में जो घंटे की आवाज आती है टन, वो क्या है इसमें। और अगर आप प्लास्टिक की चीज करेंगे ना, जैसे मान लीजिए आपने लकड़ी को कोई चीज को मारा तो आवाज कर ठक, यानी एक बार देयर इज अ साउंड ऑफ अ कोलिजन, इट इज नॉट अ सोनोरस साउंड। सो आप ये कई बार करेंगे ना, आप अपने घर पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपके टीचर की गाइडलाइन में अपने लैब में करेंगे, तो ये आपको डिफरेंस पता चलेगा करने से, ठीक है। सो जो मैंने थ्योरी आपको बताई है, प्रैक्टिकल आप कीजिएगा। एंड नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वेट। एंड नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। डेंसिटी घनत्व जिसको हम बोलते हैं, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम यानी कोई चीज कितनी हल्की है या कितनी भारी है, वो उसका घनत्व बताता है। आपने हिंदी में इसको पढ़ा होगा घनत्व। घनत्व कोई चीज हल्की है या भारी है, यह हमें पता चलता है किससे, डेंसिटी से। सो ऑल द मेटल्स आर having high density, and यहां अगर बात करें नॉन मेटल्स, नॉन डेंसिटी की अगर इसकी बात करें, इट्स एट डिफरेंस डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी। द डेंसिटी ऑफ नॉन मेटल्स इज लो, से एग्जांपल मैं क्या कहता हूं, आप दो पीस ले लीजिए, इक्वल पीस लीजिए ऐसे, ठीक है। ये आपने मेटल का ले लिया और ये नॉन मेटल का ले लिया, ये मेटल का ले लिया, ये नॉन। बोथ दीज पीसेस ऑफ एनी मेटल, ऑफ एनी नॉन मेटल, दे आर द सेम साइज, mass upon volume, that you have to find, it is density. Equal dimension of these cubes will have different masses, because if it is made of iron, अगर ये आयरन की बनी हुई है तो ये क्या हो जाएगा, बहुत भारी होगी, इसको हम बोलते हैं भारी भाई। और अगर ये लकड़ी की बनी हुई है, लकड़ी का नॉन मेटल है ना, कार्बन का एक ग्रुप है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कई चीजें होती है, वो एक अलग बात बाद में डिस्कस करेंगे, वो क्या है, हल्की है। अगर उतना ही बड़ा टुकड़ा पत्थर का भी ले लेते हैं, ठीक है, या कांच का ले लेते हैं, उतना ही बड़ा टुकड़ा, तो भी वो उतना भारी नहीं होगा जितना लोहा होता है, ठीक है। तो ये क्या हमारा डेंसिटी, भारीपन, कोई चीज हल्की है या भारी है, ये उसकी डेंसिटी बताती है। डेंसिटी इज द मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी फॉर अ सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट ऑफ इट्स वॉल्यूम। सो मेटल्स दे आर वेरी हैवी, जितने भी मेटल्स हैं ऑफ देम इरिडियम, इरिडियम एक नया नाम आया, देखिए मैंने इस चैप्टर में बहुत सारे मेटल्स के नाम बता दिए हैं, IRIDI, इरिडियम, इसका सिंबल क्या है, कैपिटल I स्मॉल r, इज द मोस्ट हाईएस्ट डेंसिटी, इट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी, है द हाईएस्ट डेंसिटी। फर्स्ट सेकंड हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है, ओस्मियम। ओस्मियम ये अनदर मेटल का नाम बता दिया, इसका कैपिटल O और स्मॉल s सिंबल रहता है, ये सेकंड हैवीएस्ट है, ये क्या है, सेकंड हैवीएस्ट मेटल, यानी इसकी डेंसिटी है। और थर्ड ले लेते हैं लिथियम, LITHIUM, लिथियम एक नया फिर नाम है, कैपिटल L स्मॉल I, इट इज द लाइटेस्ट, लाइटेस्ट सबसे हल्की धातु जो है वो क्या है, लिथियम, और सबसे भारी धातु क्या है, इरिडियम। सो दिस इज अबाउट द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। और अगर यहां इनकी बात करें, दे आर लाइट इन वेट, ठीक है, दे डू नॉट पर्टिकुलरली हैव एनी फिक्स्ड डेंसिटी बिकॉज देयर पैकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज नॉट वेल डिफाइंड। द पैकिंग ऑफ दीज नॉन मेटल्स, यानी जिन कणों से ये मिलकर के बने हैं, वो कण किस प्रकार से पैक हैं, ये स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, टर्म एंड कंडीशनिंग के बाद चेंज हो सकता है, लेकिन इनमें ये क्या है, लगभग कांस्टेंट है, ठीक है। चेंज इसमें भी होता है लेकिन दे आर कांस्टेंट। सो इसके लिए कोई वेल डिफाइंड हमारे एग्जांपल नहीं रहेंगे। सो दिस इज द 8th प्रॉपर्टी एंड नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज 9th प्रॉपर्टी। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, melting point and boiling point।
metals have high and sharp melting point and boiling points। और यहाँ क्या लिखेंगे नेक्स्ट में melting point and boiling point of non metals are low and are not sharp। See here, two things to notice, one thing is sharp, one thing is high। ठीक है, यहां देखिए अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए क्या था, अब बात करते हैं वैक्स की। वैक्स क्या है? ऐसे फॉर्म ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, यानी ये कंपाउंड है जो नॉन मेटल से बना हुआ है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, लेकिन बना हुआ किससे है? अगर हम इसको वैक्स को पिघलाते हैं तो क्या बहुत जल्दी क्या है, पिघल जाएगा। ठीक है, बहुत इजीली, बिकॉज हैव लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज दैट टेम्परेचर एट विच इट्स चेंज इट्स फिजिकल फॉर्म फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। यानी कोई सब्सटेंस है वो क्या है? सॉलिड है, और वो किसमें बदल जाता है? लिक्विड में। तो जिस टेम्परेचर पे वो बदलता है उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट माने पिघलना। ठीक है, जैसे बर्फ है ना, बर्फ क्या है? सॉलिड फॉर्म है, और पानी क्या है आपका? लिक्विड फॉर्म है। सो आइस इट मेल्ट्स ऑन 0 डिग्री सेल्सियस, इट बिगिंस टू मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। नाउ they have very high, say for example some metals have 2000, some have 2500, मतलब they are very high in thousand degree celsius, in a thousands of degree celsius. Degree celsius is a unit of temperature. Degree celsius is a unit of a temperature. When we heat the metal, all the metal, whichever it is, it needs very high temperature, at least in thousands to melt। यानी जैसे लोहा ठोस है, लोहे को पिघलाना है तो we need to approximately heat it to 2600 something, I'm not sure about this, but it needs approximately this temperature। Means to melt the metal the temperature required in thousands degree Celsius. Degree Celsius is a unit of temperature, but the melting point of non-metals is not very high, it can be in hundreds maximum। So accept a few examples, because say for example they have very strong high melting point, but usually it is not so be that। Say what is the meaning of sharp? Sharp means, say here, यहां हमने जैसे वैक्स को गर्म करना शुरू किया, immediately we start to heat the wax, it begins to melt, ये मेल्ट करना शुरू कर जाएगा। ठीक है, but here if we keep on heating this, अगर हम ये मान लीजिए एक मेटल पीस है and we keep on heating it and its melting point is 2873 Kelvin, okay, so it will not liquidify before this। Immediately after this temperature it will all change into liquid form, it is said sharp melting point। What is the meaning of sharp melting point? Sharp melting point of a substance of the metals means they melt at a particular temperature all of a sudden। ठीक है, ओके, entirely सारी की सारी जो उसका पीस है वो एकदम से पिघलना शुरू होगा। ठीक है, मैं नहीं कहता कि एकदम से सेकंड्स में हो जाएगा, बट एकदम से पिघल जाएगा। इट विल नॉट स्टार्ट मेल्टिंग लाइक वैक्स। अब जब वैक्स को हमने गर्म किया वो थोड़ा सा, वैक्स इसलिए कह रहा हूं मैं, और भी कुछ एग्जांपल और भी है नॉन मेटल्स के। अगर मैं आपको बोलूं सल्फर ले लीजिए आप, ठीक है, सल्फर है, लेकिन वो प्रैक्टिकल एग्जांपल ऐसा है कि आपके पास घर पे अवेलेबल हो सकता है या चांसेस कम है, इसलिए मैंने वैक्स को लिया है। सल्फर जो है ना, सल्फर सॉलिड फॉर्म में है, अगर आप उसको लिक्विड करोगे, सल्फर जो एक येलो कलर का सब्सटेंस है, इसको अगर आप हीट करते हो, इट्स अ प्योर फॉर्म ऑफ सल्फर, इट्स एन एलिमेंट नॉन मेटल, तो ये क्या धीरे धीरे क्या मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे हम इसको हीट करना शुरू होंगे तो इसे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। सो ये कहते हैं ये नॉन शार्पनेस है, और ये
हीट होता रहेगा एकदम से मेल्ट होएगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. इट इज नोन एज द शार्पनेस. सो इट इज ऑल अबाउट टेम्परेचर, सॉरी, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. So keep watching the video. We will be back with the next video with the chemical property of the metals and non-metals. Stay here, and if you have not subscribed the channel, please subscribe it and hit the bell icon so that whenever any future video is uploaded, you get the notification timely. Thank you very much for being here. Have a nice day.